दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? इंटरव्यू टेक्नीक, the one which is used in SSP, the primary requirement is that you speak. अगर आप मुझसे कहें कि डीआईपीआर की रिक्वायरमेंट क्या है? डीआईपीआर की रिक्वायरमेंट है कि 5% इंटरव्यूअर बोलेगा या 10% एंड 90% के आसपास इंटरव्यूई बोलेगा। मैम ये क्लियर कट गाइडलाइन है, गाइडलाइन क्या फॉर्मेटिंग ही ऐसा है। अगर आप लोगों में किसी ने जोहारी विंडो टेस्ट किया हो, एक पर्सनैलिटी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरव्यूअर पर्सनैलिटी। वो पर्सनैलिटी का एसेंस ही यही है कि वो आपसे बुलवाए, अपने बारे में बिना कुछ बताए। अब क्या होता है कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं, चाहे आप मेरे साथ भी जब इंटरव्यू करते हैं, देयर इज सो मच ऑफ information that is fed in your mind. Naturally it will be, because you are preparing for defense services and you want to do well. So you cannot control कि कौन से resources आपके उसमें आ रहे हैं, और उन resources की वजह से ये एक जो मैंने common mistake देखी है वो ये है कि you are not speaking, or you are thinking that should I speak this, should I speak that, should I speak this or not, how will it be taken, what is the implication. You don't do this, guys. Then what happens? Your body language gives up. You don't realize when you restrict your thoughts, it's visible. You can very well make out. जैसे कि मैं मॉक इंटरव्यू कर रहा था अभी एक फीमेल कैंडिडेट का, मैं उसको बोला डीब्रीफ में, यू हैव विथहेल्ड सो मेनी इन्फॉर्मेशन। शी आस्क्ड मी वेयर, आई सेड हियर, हियर, हियर। नाउ व्हेन यू आर withholding the information, you are revealing so many things. It's not that you are able to withhold the information. ये इंटरव्यू साइकोलॉजिकल है, ये इंटरव्यू कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है। अगर आप इस तरह के इंटरव्यू देखते हैं जिसमें इंटरव्यूअर जो है वो बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, क्वेश्चन आंसर सेशन बना दिया है। अब एक इंटरव्यू में कोई देख रहा था, वो कह रहे थे कि उसके ग्राम पंचायत का नाम बताओ। विलेज का लड़का था ऑब्वियसली। अच्छा, ग्राम पंचायत का बता दिया था। अच्छा, ग्राम पंचायत के पंच का नाम बताओ, तो मुखिया का नाम बताओ, तो ये बताओ। Where is it leading? I don't understand. Where does the psychology come in this? CIQ पूछ में नहीं किया। I mean, how can you do online or offline mock SSP interview without CIQ? तो नाम ही उसका कंपल्सरी क्वेश्चनियर है। The word is compulsory, means it has to be there, because that sets the tone, that sets the framework. आप फ्रेमवर्क ही नहीं डालेंगे, इट्स लाइक यू आर टेकिंग अ टीएटी टेस्ट विदाउट शोइंग द पिक्चर। इज इट पॉसिबल? यू माइट बी थिंकिंग कि सर सीआईक्यू मैं पूरा प्रिपेयर कर लूं। कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि मैं सीआईक्यू पूरा प्रिपेयर कर लेता हूं। दैट डजंट मैटर, इट डजंट हेल्प यू। Obviously, basic things you will prepare, that anybody will do. But CIQ preparation is not an SSB preparation. You're mistaken. SSB preparation is about knowing yourself, about being very comfortable with yourself. Till the time you achieve that comfort level with yourself, it won't come out well. How will you achieve the comfort level? You need to know what are the weaknesses that has been holding you. First thing, what are the strengths that define you? How are you polishing those strengths and how are you working on those weaknesses? Now, what kind of weaknesses should be there? Obviously, if you end up saying ki I'm a psychopath and I love to do, I mean, you hope you get my point. It can't be. It is not something which can be recovered. But small weaknesses, for example, I am slightly lazy, I'm slightly unorganized, or I can build up on my communication in case it is not very good, and even if it is good.
I can build up on my physical stamina, I can build up on my knowledge, I can build up on my, and it depends upon you, personality दर personality फिर specifics में जाने लगती है। तो जेनरिक हो गया, स्पेसिफिक वीकनेसेस आपकी क्या हैं वो आपको पता करना पड़ेगा। मेरा जो मॉक इंटरव्यू होता है मैं उनको यही कोशिश करता हूँ कि एक बार तुमको बता दे भाई तुम्हारा ये वीकनेस है, इस पे काम कर लो, अपना स्ट्रेंथ वीकनेस बना लो। मैं बोलता हूँ अपने कैंडिडेट को कि अब एक काम करो, मैं एक मॉडल तुम्हें भेज रहा हूँ, ये मॉडल तुम रखो और इस मॉडल के हिसाब से अपना खुद का बना लो, एक बार बना के फ्री हो जाओ, फिर जैसे भी सवाल आए। मान लो इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि व्हाई आर यू नॉट रिकमेंडेड, वो ये थोड़ा पूछ रहा है कि तुम साइकोलॉजी टेस्ट अच्छा किए कि इंटरव्यू टेस्ट अच्छा किए कि जीटीओ अच्छा नहीं किए, नॉट आस्किंग अबाउट टेस्ट, ही इज रीचिंग आउट टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, to what you may call it as insight. Do you actually have an idea about yourself? Insight. Now, instead of knowing your insight, if you keep preparing CIQs, it is no use because CIQ तो एक introduction type questionnaire हो गया, नाम है उसका वही है, follow up. Follow ups will vary. Nobody can know what follow up will come. You can guess few follow ups. बट जनरली क्या होगा, अच्छा इंटरव्यूअर होगा आपको गेस गेम को किल कर देगा, या वो वाले क्वेश्चन को इमीडिएटली ना पूछ के होल्ड कर लेगा, बाद में पूछ देगा जब आप अपने बैक फुट पे होंगे। जब मान लीजिए आपके नंबर कम आए हैं, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से पूछने वाला है कि मेरे नंबर क्यों कम आए, और नहीं पूछेगा, कहीं और घूमता रहेगा, फ्रेंड में घूमता रहेगा, दिस दैट, फिर अचानक से पूछेगा देन व्हाट लेड टू द डिक्लाइन इन द मार्क्स। अब you're totally caught unguarded, and that is what the technique is all about. If he keeps you in your comfort zone all the time, you won't give out true things about yourself. The idea is to get that, because ये सीखिए, इंटरव्यूअर को उसी 40 मिनट में, 45 मिनट में, कई कई इंटरव्यू 1 घंटा भी चल सकता है, बिकॉज ही इज नॉट येट क्लियर, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटनेस ऑफ द इंटरव्यू। उसको ये असर्टेन हो जाना है कि ये जो ओएल क्यूज हैं, 15 ऑयल क्यूज जो हैं, इनके मैं कौन से शेड्स में इसको फिट करूं। अब हर ऑयल क्यू का शेड बना हुआ है, आप ऑन एन एवरेज समझ लीजिए कि एक ऑयल क्यू का 35-36 शेड तो आराम से, शेड्स शेड्स पे मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, परंतु वो शेड्स जो हैं वो आपकी व्यक्तित्व से ही निकलते हैं। बेसिकली कैसे चलता है, इंटरव्यूअर हो चाहे जीटी हो चाहे साइको, शेड निकालता है, शेड से वो एक टिक पैटर्न का एक टेक्निक है जो एसेसर्स को सिखाया जाता है कि इस शेड से फिर टिक पे आओ और टिक से फिर फाइनल मार्क्स पे आओ। तो वो चीजें आई विल नॉट शेयर विथ यू, बट दिस इज हाउ ही इज गेटिंग द शेड ऑफ यू, कि लाइक कॉन्फिडेंस में आपका क्या शेड है, अंडर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, मैनेजेबल है, इस तरह के कई कई शेड्स बने होंगे। वो शेड पे जाएगा, शेड कैसे आएगा, आपसे ही आएगा, कैसे आएगा, हाउ आर यू हैंडलिंग दोस क्वेश्चंस, follow up questions. You don't know what is the follow up question, no one can know, it will vary from person to person. Any interviewer will accordingly vary the question as per the answers given by you. So most of the questions you follow will depend upon the answers that you have given. But primarily, where is he trying to zero in? He is trying to zero into your strength and weaknesses, your comfort level, your various shades of oil cues. Some shades or some oil cues may be considered as trainable. For example, a boy from a village, he has some issues related to shades, related to ability to influence the group. He's not able to, dominate. I'll not use the word dominate. He's not able to put a good influence on the group. इनहिबिशंस हैं, एक्सपोजर कम है, ये ट्रेनेबल है, एकेडमी में जाएगा, वहाँ पे उसको करवाएंगे, धीरे धीरे वो खुलना शुरू होगा। तो ट्रेनिंग का अपना एक महत्व है, दैट्स व्हाई द वर्ड इज की इज रिकमेंडेड फॉर ट्रेनिंग, नॉट फॉर रिकमेंडेड टू बिकम एन ऑफिसर। नो, ट्रेनिंग अपना रोल पूरा करेगी, ही विल ओपन अप। इनिशिएटिव नहीं आ रहा है, मे बी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है इन सर्टेन डायमेंशंस, लाइक पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस नहीं ओपन अप हुआ है अभी तक, तो वो हो जाएगा, उसको पता हो जाएगा। तो वो उसी हिसाब से आपको जो टिक पैटर्न है उसका, उसी हिसाब से आपको अलाउंस देता है
एक रिडंडेंसी देता है, कैंडिडेट को एक बेनिफिट देता है कि इवन इफ सर्टेन OLQs have certain sheets or ticks or marks, they are considered in holistic manner, not that in all the OLQs you have to be shining only. ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा व्यक्तित्व तो बहुत रेयर है, सब कुछ है ओपन है उसका, टक 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 एकदम। हाँ, हो सकता है, कई ऐसे मैंने कैंडिडेट्स देखे हैं, मिलिट्री स्कूल वाले, RIMC वाले, और भी कई जिनके आइडियाज क्लियर हैं, थॉट्स क्लियर हैं, पर्सनालिटी वेल ग्रूम्ड है, एक्सपोज्ड है, बहुत ज्यादा पॉसिबल है, बट बहुत कम। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, आप ये तैयारी मत कीजिए कि मैं ये ना बताऊं, मैं वो ना बताऊं। जो आपको लगता है चीजें आपकी कमजोर हैं, उस पर आदर काम कीजिए और उस हिसाब से आप जाइए। एंड इस 40 मिनट के इंटरव्यू का उतना ही महत्व है जितना वो 2 दिन की GTO का है। मार्किंग सिस्टम में everyone has equal. In fact, conference procedure में interviewing officer has double the marks technically. I'll use the word technically. बट 40 मिनट आपका वो 2 दिन के बराबर है, इसको आप अगर कम तवज्जो दे रहे हैं तो आप घातक परिणाम इसके होंगे। घातक इन द सेंस कि यू विल नॉट रियलाइज कि SSP is not only about रस्सी फटना एंड बल्कि, it's about how you communicate, what you communicate, how confident you are about yourself, how well you know yourself as a person, and so many other things. So we'll talk about these in further interviews. आप मुझे बताइएगा, if you have any queries related to it, do tell me. If you want to do a mock interview with me, definitely connect with me on my number. And know yourself, know your strengths, polish them, know your weaknesses, work on them. That's all. And be happy and be comfortable with yourself. Like this channel, subscribe it, share it if you like. Thank you and Jai Hind.